My dear mother, even if he worships with proper rituals and paraphernalia, a person who is ignorant of my presence in all living entities never pleases me by the worship of my deities in the temple. There are 64 different prescriptions for the worship of the deity in the temple. There are many items offered to the deity, some valuable and some less valuable. As described in Gita, if a devotee offers me small flower, a leaf, small some water, or a little fruit, I will accept. The real purpose is to exhibit one's loving devotion to the Lord. The offering themselves are secondary. If one has not developed loving devotion to the Lord, simply offering some kinds of foodstuffs, fruit and flower, without real devotion, the offering will not be accepted by the Lord. We cannot bribe the Lord. He is so great that our bribery has no value. Nor has he any scarcity. Since he is full in himself, what can we offer him? Everything is produced by him. We simply offer to show our love and gratitude to the Lord. This gratitude and love for God is exhibited by pure devotee who knows the Lord lives in every living entity. As such, temple worship necessarily includes distribution of prasadam. It is not that one should create a temple in a private apartment or a private room, offer something to the Lord and then eat. Of course, that is better than simply cooking food stuff and eating without understanding one's relationship with the Lord. People who act in this manner are just like animals. But the devotee who wants to elevate himself to the higher level of understanding must know that the Lord is present in every living entity. As stated in the previous verse, one should be compassionate to other living entities. A devotee should worship the Lord and be friendly to persons who are on the same level and be compassionate to the ignorant. One should exhibit his compassion for the ignorant living entities by distributing prasadam. Distribution of prasadam to the ignorant masses of people is essential for persons who make offerings to the Supreme Personality of Godhead. So, this is a series of verses which we are discussing. So, we were discussing from Madhure Kadamani, Ado Sardha Sadhu Sant Bhajan Priya, then another Nivarti. In that we discussed Duskriputra Natha, Sukriputra Natha, and now we are discussing Aparad. So, in Aparad, we were discussing this aspect of respect, that one of the way or one of the reason why we offend others or offense happens because we lack respect for others. So in this particular section, Lord Kapila is saying, emphasizing this point, that if you want to worship the Lord, then it is equally important to give respect to the living entities. So there are three aspects. One is how we relate to the material nature, another is how we relate to the living entities, and third is how we relate to God. So the moment we want to worship God, then everything is connection in connection with God. The material nature also is in connection with God. The living entities are also part and parcel of God. So if we say I am worshipping God, if we say I am loving God, then automatically it goes without saying that the part and parcel of Lord also should be given due respect. It goes without saying that the energies of the Lord, the manifestations from the Lord, the material nature also should be given due respect. So if somebody says I am worshipping Lord, but then he is not giving respect to the living entities, then that worship is not accepted by the Lord. That's the word he is saying. That kind of worship does not please the Lord. In fact, when it comes to especially those living entities who are devotees of the Lord, Krishna says their worship or giving service to the devotees is more superior than worshipping directly Lord. So we see that how Lord and the living entities they are very closely connected. Living entities being part and parcel of the Lord are naturally loved by the Lord. And naturally, Lord has lot of feeling and affection for the living entities. So when Lord sees a person who is trying to worship him, and then that person is able to see the connection of living entities with the Lord. And with that connection, he wants to serve the living entities. So this attitude is very pleasing to Krishna. And that's why we see in devotion service also, yasya prasada bhagavad prasado, yasya prasada na pratikuto.
The way to approach the Lord is through living entities. When we say water the root, so we don't take out root of the tree out of the ground and then we water it. If you want to water the root, you have to water on the sand. And then through the sand, the water which you are pouring goes to the roots. So that sand is compared to the devotees of the Lord. If you say, I want to please the Lord, then it has to be through devotees. Then only your water, which is your desire to please the Lord, can reach to the root. But if somebody says, no, 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 I have a lot of respect for God, God is so great, God is without faults, God is supremely powerful, and these living entities, they are full of faults, devotees, they are good for nothing, then that attitude or that kind of a person actually cannot please God. So it goes without saying that the moment we say, I want to worship Lord, I want to please the Lord, it goes without saying that we have to please the devotees of the Lord. And you see, what is the mood in the spiritual world? The mood in the spiritual world is how to make Krishna happy. And every devotee knows that Krishna will be happy when other jivas are also happy. So everyone develops an attitude of servant, of servant, of servant. And the more somebody has this attitude, that much he gives pleasure to Krishna. The more somebody has an attitude that I want to just serve others, that much he gives pleasure to Krishna. So who are the great souls? We see Srimati Radharani, Yashoda Maiya, Nanda Maharaj, who are very close associates of Krishna. So they have this desire to be servant of servant of servant of servant of all. They want to help every jiva to be very happy. And because of that attitude, they become very dear to Krishna. So we see that how, if we want to actually worship the Lord, then we also have to value the living entity. Otherwise, our worship will be a ritual, but that will not be pleasing to Krishna. That's why in our Vedic culture we see the moment you put God in the center, there is a harmony in the living entities. There is cooperation in the living entities. Why? Because it goes without saying, if we want to worship Lord, then we can't fight among ourselves. We can't pull down some other living entities. But in modern scenario, or the moment we go away from God, the tendency becomes totally opposite to control others, pull down others, to exploit others. And this attitude is very displeasing to Krishna and very hurting to the living entity. But that's how we see in the modern culture, everyone gets that attitude. People become very selfishly oriented. And for their selfishness, they are ready to do anything which may cause troubles for many also. But our Vedic culture is that when we want to serve Krishna, then we want to please other living entities also. So that selfless attitude pleases Krishna. The selfless attitude to not think about oneself, but to think about other living entities in connection to Krishna. But in the modern culture, it is different. One time, there was one seminar organized by one devotee. It was a Grasta devotee who were there. So to half of the devotee, that devotee gave balloons. All balloons were filled with air. To half of the devotees, he gave balloons. To the remaining half, he gave pins. And then to the half devotees to whom he had given balloons, he told them run. So they started running. And the devotees who had pins without Maharaj, uh, if we are offending some devotee who is not a pure devotee, so or if we are finding fault in a devotee who is not a pure devotee, so what do you feel about it? So Maharaj said this attitude itself is wrong. The point is you want to offend. See, those who want to offend, they always have this kind of question. You not pure नहीं, इसको तो कर सकते हैं. So Maharaj is telling, spitting venom is problematic, but having a venom also is problematic. There is a snake which is a poison. When he bites, that's problem. But having poison also is a problem. Having this bad attitude that I can offend others, I can find fault in others, that also is wrong. That is not good. And
we find fault not because of other people's weakness, we find fault because of our own weakness, which we are not able to see. That is one tendency of fault finding. That is one tendency of uh, seeing faults in others, that it covers. Hare Krishna. So somehow the laptop battery got discharged suddenly. So where was I? So I was telling, when we find fault in others, generally it appears we finding fault in others because they have fault. They have fault. We are finding others, or we are able to find fault. Then there is a great probability that we have faults. Jesus says when we are able to see fault in others, either that fault is there in us or it will come in us. So one needs to be at a very high level to see fault in others and correct them. Not everyone can find a fault. That's why in the Vedic culture, only those who are serving spiritual masters, those who are very senior, they were given that adhikar authority that they can find a fault for the betterment of the disciple, for the improvement of the disciple, and for no other reason. But whereas when we find fault, it may have certain attitude to bring him down. We may have certain attitude to show ourselves being superior to them. We, instead of having a compassionate attitude to help them, we may have an attitude to bring down their image. So we have to be extremely careful because Krishna sees the attitude, he is not seeing the action, he is seeing attitude. For with what attitude you are doing this? So when Swabri Rishi, he cursed Garuda. So one may feel, oh, Swabri Rishi cursed Garuda for the protection of the fishes. But our acharyas, they say, Swabri Rishi, he cursed Garuda because he had a desire to control. Because he had a desire to control that I am doing tapasya here, this is my area, how come you come here and take fishes? So it was not compassion on the fishes, it was more of his desire to control. But it is so subtle, our acharyas can say. Generally, anyone, even we hear the pastime, we get this doubt and we also feel that he was trying to help only. He was compassionate to fishes. Guruji would come and would eat one of the fishes and go. So he thought, let me help fishes. But behind that, he had a desire to control. And because Krishna saw that, and that's why his attraction for sense objects came. Can you imagine Sabri Rishi was so renounced and he was so careful not to be distracted that he went inside the water to do tapasya? Means he must be very serious about his spiritual practices. Then only he can take up this level of practice, this intense level of practice. Is it not? In spite of having such seriousness, in spite of being so careful, he went inside the water, but he offended a devotee. Inside the water, Krishna arose a sense of desire. Can you imagine? And he just happened to see two fishes. And actually, the fishes, how they unite, we don't know. Like the His Holiness Radhanath Maharaj is telling that how fishes they unite, that also we can't make out. They may touch each other, sense of touch. But that agitated him to an extent that he came out and the Kam Vashna came, lusty thoughts came to such an intense level that he could not control himself. Then he wanted to have sex. So he went to Mandhata and he proposed. And he said, if any of my daughter agrees, you can marry. And he understood that I am so amir, no one will marry. So he used all the tapasya which previously he was doing for spiritual perfection. He used all that tapasya for becoming beautiful, for having material opulence. And he married all 50 daughters of Mandata, enjoyed for thousands of years, and then he came to his senses when Krishna gave him mercy and that uh,
aspect of what he had offended a devotee of the Lord, that was gone. That time he realized, alas, क्या हो गया मेरे को, कहाँ मैं गया था भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए, और कहाँ मेरा इतना बुरा हाल हो गया, ऐसा. So we see that how Sobri Rishi, he himself says, everyone should learn from my example that how an offense to a devotee of the Lord can cause harm. ऐसा. Because Krishna will see the attitude. We have to be very careful. Sometimes devotees, they may act in certain way without seeing that, am I doing for betterment of that devotee? Will it help that devotee in certain way? And we may actually speak which we don't know. We may speak or offend more than actually the truth is. And it backfires like anything, because Krishna sees. And to the extent that devotee is sincere, to the extent that devotee is advanced, to that extent reaction will come. Reaction will surely come. Even if somebody is hurting an ant, reaction will come, the Shastras they say. But depending upon the consciousness of individual being involved, the reaction will be severe. If we are offending and having such attitude for devotees, and what to say of having for some great soul, then it is very serious, very serious. Then, we have a lot of difficulties. Right? So for devotees, what happens is Krishna gives them the material desire. And because of that material desire, then they go out of devotional service, go out of devotional association. So we see that how this aspect is very important, that we have to respect the devotees. And these offenses are very severe. When Srila Goswami, he studies the life of Bharat Maharaj. So in one way, it is very surprising how come Bharat Maharaj, who came to the level of bhava and happened to become so attached to deer. Somebody who is crying for Krishna, and who is Bharat Maharaj? He was the king of the whole earth, and still was so detached. He was at prime of his youth. Still, he left everything and went to the forest for cultivating his Krishna consciousness. Still, that Bharat became attached to whom? Not to a woman. It's not that some beautiful Apsara came and then Bharat Maharaj somehow happened to fall down. No, a deer. So Srila Jiva Goswami says that why he became attached to deer? Why he became attracted to deer? Then he says, because of offense in his previous life. Bharat Maharaj, although in this life he achieved a bhava platform, but there was a residual of offense which he had done in the past life. Because of that offense, he became attracted to deer. See, Sobri, because of offense, became attracted to the sense object of opposite sex. And here, because of the offense, he became attracted to deer. So we see that these are very serious, especially when we want to take up to spiritual life. If you're not very careful, then it is very difficult. We also become attracted to sense objects. We will also have material desires. And it is very difficult for us to have a heart purification. What to say of actually having taste for chanting holy names of the Lord and having taste for Srimad Bhagavatam. So we have to know that if we are hurting devotees, offending devotees, and even living entities, then Krishna, instead of giving taste for holy name and taste for Bhagavatam, he will give taste for material things. You will have taste for money, you will have taste for women, you will have taste for sense gratification. That is the test, which taste you are getting. That is the test. That am I pleasing devotees or am I displeasing devotees? You have to be very careful the way I speak, the way I behave, the way I act, or any situation, how it is. And devotee means, or the process of bhakti yoga itself means anukulena Krishna anushilana. Whatever a devotee is doing, it has to be done for pleasure of Krishna. The devotee knows that will it please Krishna? That is the constant thought process.
So one has to be very careful. So we see in case of Bharat Maharaj, we see in case of Sabri Rishi, they developed this desire for material things, taste for material things because of uh, somehow or other they offended some devotee. Same way, see in the sixth canto, this pastime comes of sixth canto in chapter 7. There is a pastime of Varaspati. So Parishit Maharaj, he heard that how Brahaspati rejected the demigods. So Parishit Maharaj, naturally being a very intelligent hearer, he is asking that how come, why he, the spiritual master rejected his own disciples? What offense did the demigods commit against their spiritual master? Please describe to me this incident. So then, now he will describe this incident. So what happens is, once king, he was there, and this is a tendency in Kali Yuga. The moment somebody gets some post, the moment somebody gets some position, the moment somebody gets some money, the moment somebody becomes somewhat successful, pride comes. Because pride and bhog, these two are very important qualities for keeping jiva in the material world. Pride and bhog. These are two important aspects to keep jiva in the material world. So you will find material energy somehow there will always try to increase these two things. You see, whole material creation is trying to increase these two things. So many items are being made, so many things are being made so that you can increase your bhoga. इस मोबाइल में अच्छा भोग नहीं होगा, ये दूसरा मोबाइल लो, ये एप्पल का मोबाइल है, इसमें ज्यादा भोग हो। ये चाट में ज्यादा भोग नहीं है, इसमें ये मिलाओ, टमाटर मिलाओ, नींबू मिलाओ, ये मिलाओ, वो मिलाओ, अभी भोग करो। और भोग करने के बाद पेट खराब हो रहा है, ये दवाई खा लो, लेकिन भोग कम नहीं होना चाहिए। एंड सेम वे दिस प्राइड, राइट? हर जगह आप देखोगे मटेरियल एनर्जी का, लोगों को प्राइड रहता है। ब्राह्मण परिवार में होगे तो ब्राह्मण का प्राइड है, कहीं थोड़ा सा एजुकेशन हो गया तो उसका प्राइड है, देश का भी प्राइड है। छोटे से देश के भी लोग बोलेंगे हमारा देश महान है, और उनके देश को उनको छोड़ के कोई जानता भी नहीं होगा। लेकिन वो माया सबको एक आइडेंटिफिकेशन दे देती है, उस आइडेंटिफिकेशन से प्राइड दे देती है। चाहे ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं होगा लड़का, लेकिन प्राइड इतना रहेगा, उसको बोलो कि अरे आपको ये कंपनी लग रही है, इसमें 40,000 रुपये मिल सकता है। नहीं नहीं बोलिए, मैं इतना कैसे, मैं बड़ा पैकेज चाहिए। क्योंकि माया उसको बोलती तुम छोटे हो ना, तुम बड़े हो, बड़े पैकेज चाहिए। फिर संघर्ष करता है, पैकेज में ही संघर्ष करता है। It requires humility to understand ourselves also. How much I can get, what are my strengths, what are my weakness. बट ये माया देवी का काम है। आप देखो सब लोग अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका एक कारण क्या है? सबको ये लगता है कि वो ज्यादा और कमा सकता है, लेकिन जिसको जितना मिल रहा है मिल उतना ही रहा है, लेकिन सबके अंदर एक ये फीलिंग है कि मैं और कर सकता, मैं और कर सकता, मैं और कर सकता। हर जगह बेचारा करेगा। और कुछ लोग जो है 15-20 साल के बाद में आप देखना बोले अरे बहुत ट्राई किया, ये किया उधर नुकसान हो गया, ये किया इधर नुकसान, वो किया इधर नुकसान। लेकिन ये प्राइड नहीं रहेगा तो आप संसार में मेहनत कैसे करोगे, संसार में रहोगे कैसे? तो इसलिए माया देवी ये दोनों चीजों को मेक श्योर करती है, दोनों चीजें बढ़ती रहे। लेकिन कोई कुछ भी होगा तुरंत ये प्राइड आ जाती है, भोगवृत्ति आ जाती है। जैसे कोई साइंस ऑब्जेक्ट आपके सामने आएगा, जैसे गुलाब जामुन आपके सामने आएगा, तुरंत मन में क्या विचार आएगा? किसी को दे दो। तुरंत मन में विचार क्या आएगा? खा लो। क्योंकि वो हमारा सेटिंग ही ऐसा बन चुका है, ऐसा। और किसी ने अगर थोड़ा गुणगान कर दिया, प्रभु आज भाव गा रहे थे क्या, तुरंत मन में आपके में क्या भाव आएगा? हाँ नहीं गा रहा था, क्या गा रहे थे प्रभु। फिर बस अंदर से फॉल्स रिकॉर्ड ड्रम बजाएगा, टन टन टन, वाह यूरेका। फाइनली इसने पहचान लिया तुम कौन हो, बाकी लोग तो अज्ञान में है।
एक ही ज्ञानी पुरुष है इस वॉइस में, और फिर वो आपका आपका दोस्त बन जाएगा, आपका उनके प्रति अफेक्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जान पा रहे हैं आप कितने महान। बाकी लोग तो अज्ञान में है, बाकी लोग तो समझ नहीं रहे हैं ऐसे। और फिर आप सोओगे तभी आपको मन में विचार आएगा, कोई गाता नहीं है ऐसा। बेचारे कितना ऑस्टेरिटी होता है भक्तों को जब एक दूसरे भक्तों से सुनते हैं। तो जब मैं गाता हूँ तो क्या गाता हूँ। फिर कभी वो सुनेगा भागवतम क्लास में कि गंधर्व आते हैं, तो उसको मन में आएगा गंधर्व को क्यों बुलाया जाता है, जब मैं यहाँ पर अहंकार का कोई सीमा ही नहीं रहता है। व्यक्ति जितना है नहीं उससे बड़ा सोचने लग जाता है। यही तो माया का प्रभाव है। और फिर वो अपराध करता है, और फिर ऐसा गिरता है जो उसने सोचा नहीं। माया का यही प्रभाव है, चढ़ाएगी फिर गिराएगी, लेकिन भौतिक दुनिया ही में रखेगी। तो इंद्र जो है वो भी एकदम प्राउड हो गया। अब सारे देवताओं का देवता है, बहुत सारी शक्तियां हैं। छोटे से देश का कोई राष्ट्रपति होता है, उसमें देखो कितनी शक्तियां आ जाती हैं। कहीं बोलेगा यहाँ रोड बना दो तो रोड बन जाएगी, कहीं बोलेगा बुलडोजर चढ़ा दो तो बुलडोजर चढ़ जाएगा। तो ये तो देवता है, और देवताओं में भी देवताओं के राजा है। तो बहुत उनके अंदर में प्राइड था, और बहुत बड़े सीट पे बैठे थे क्योंकि उनका सम्मान था वैसा पद के अनुसार। और उनके नीचे मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, रघु, विश्वदेव, साध्य, अश्वनी कुमार, सिद्धा, चरना, गंधर्वा, ये सब ऐसे बैठे हुए हैं, और सब जो है उनको सलामी दे रहे हैं। और ये सब जो है इंद्र को रिस्पेक्ट दे रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। अप्सरा, गंधर्व, गंधर्व और अप्सरा क्या है, डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे इंद्र के प्रसन्नता के लिए। और इंद्र के सिर पे एक छाता था, सफेद रंग का छाता, और उसको कोई चामर कर रहा था। और इंद्र की जो पत्नी है वो उसके बगल में बैठी थी। तो आप देखो कितना ऑपुलेंस, इतने बड़े बड़े सब लोग हैं, सब सामने बैठे हैं, और सब जो है ऐसे नमस्कार कर रहे हैं, और चामर हो रहा है, छाता लगा हुआ है आपके सामने। दुनिया के जो सबसे अच्छे संगीतकार हैं, दुनिया के जो सबसे सुंदरी औरतें हैं, वो नृत्य कर रही हैं आपके सामने। कैसा अहंकार होगा ऐसा। तो वही इनके में हो गया। अब ये सब जब चल रहा था तब उस समय में बृहस्पति है। तो बृहस्पति जब आए तो इंद्र ने देख लिया कि बृहस्पति आए। और क्या है ना, जिसको सम्मान लेने की बहुत ज्यादा आदत हो जाती है वो सम्मान देना भूल जाता है। इंद्र को क्या है, सब लोग सम्मान ही दे रहे थे, सब लोग सम्मान ही दे रहे थे, तो भूल गया कि मुझे भी देना होता है। तो बृहस्पति आ गए तो सम्मान नहीं दिया बृहस्पति को। तो इंद्र ने देख तो लिया, लेकिन बृहस्पति को सम्मान नहीं दिया, ना ही उनको रिस्पेक्टफुल वेलकम किया। जैसे कई बार आप अ, भागवतम क्लास के लिए बैठे हो व्यासासन पर, मानो आपके स्पिरिचुअल मास्टर आ जाए, तो बेस्ट तो है कि आप उनको दंडवत कीजिए खड़े होकर। लेकिन किसी कारणवश मानो कि भागवतम क्लास है, और व्यासदेव को भी सम्मान देना है, और आपको सेवा भी दी गई है, तो अगर मानो आप दंडवत नहीं कर रहे हैं सिचुएशन, तो कम से कम रिस्पेक्ट जो है बोलना चाहिए। कि हम महाराज जी का स्वागत करते हैं, उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वो हम पे कृपा करें, उनकी कृपा से हम इस पे कंटिन्यू कर सकें बोलने। तो उनका रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनका प्रेजेंस, उनको सम्मान देना चाहिए। लेकिन जब अहंकार आ जाता है तो ये स्वाभाविक है कि हम दूसरों को सम्मान नहीं दे पाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर इंद्र जो है वो देख लेता है, लेकिन ना अपनी सीट से खड़ा होता है, ना उनको कुछ सम्मान देता है, और कुछ भी ऐसा नहीं करता जिससे कि उनको सम्मान लगे। कम से कम कई बार होता है ना, आप सम्मान नहीं देख पाते, लेकिन उनकी तरफ देखो, मतलब मुस्कुराई देते हो या हरे कृष्णा बोल देते हो, तो उससे ही उनको लगता है कि हाँ कुछ तो सम्मान दिए। लेकिन इस अवस्था में इंद्र जो है इतने मद हो गए थे, कुछ भी नहीं किया बृहस्पति के लिए, सोच सकते हो आप। तो ये अहंकार का जो है लक्षण है, कि व्यक्ति को जब बहुत सम्मान मिलता है तो दूसरों को सम्मान देना भूल जाता है। भौतिक दुनिया में लोग यही चीजों के लिए आकर्षक होते हैं, यही पद प्राप्त करना चाहते हैं, नाम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जो असली में भक्त बनना चाहता है तो वो देखता है कि ये सही में बाधा है भक्ति के लिए। भक्त इन सब चीजों के लिए एस्पायर नहीं करता है, उसको पता है कि ये तो बाधा है।
भक्ति की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये सही चीज नहीं है, ये तो पतन का कारण है। इसलिए जड़ भरत आप देखेंगे बिल्कुल शांत रहते थे। पिताजी बोलते थे बेटा आईआईटी के लिए पढ़ लो, एडमिशन हो जाएगा ना आईआईटी के लिए। पिछले जन्म का आईआईटी याद है। बेटा कुछ करो, अच्छी लड़की से विवाह होगा। कुछ नहीं चाहिए भैया, कुछ नहीं करते थे। उनको पता था भौतिक दुनिया में कुछ करना भक्ति से दूर होने का लक्षण हो जाता है। तो इसलिए भौतिक दुनिया में भक्त जो है बड़ा सतर्क रहता है, उसको पता है कि ये चीजें फंसाने वाली है। माया देवी कुछ भी आपको दे रही है वो फंसाने के लिए। तो इंद्र जो है इतना विचलित हो जाता है ऐसा करके। तो कुंती महारानी जो है वो भागवतम में बताती हैं कि जो जितनी चीजें हैं ये अहंकार लेके आती है। जन ऐश्वर्य सुख शील भी एद मद कुमार। तो क्या है जन, यानी कि हाई बर्थ, किसी का बड़े परिवार में जन्म होता है। अभी भी भारत में जबकि कोई ब्राह्मण के कार्य नहीं करते हैं, ना ही ब्राह्मण के गुण है, फिर भी अगर वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है तो मन में क्या रहता है, ब्राह्मण है, ऐसा उनके मन में रहता है। कई बार जब हम नए छात्रों को प्रचार करते हैं या नई जगह पर प्रचार करते हैं, अगर कोई ब्राह्मण हुआ तो क्लास के बाद में तुरंत आएगा, स्वामी जी हम भी ब्राह्मण ही है। फिर हमको बोलते हैं ठीक है, लेकिन ब्राह्मण के कार्य भी करो, शास्त्र भी पढ़ो, थोड़ा भक्ति भी करो, प्रमाणिक ब्राह्मण बनो। हाँ 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 हाँ। फिर वो थोड़ा विनम्र हो जाते हैं। तो एक मन में वो रहता है हाई बर्थ का, या कोई अमीर खानदान में पैदा हुआ है तो उस पर एक गर्व रहता है, मेरे पिता तो ये है, मेरे पिता तो ये है, ऐसा। तो हम देखते हैं श्रृंगी, वो ब्राह्मण का गर्व किया उसने और परीक्षित महाराज को कर्ज किया, ऐसा। तो उसके बाद हम देखते हैं सुरुचि, उसको गर्व था कि उत्तानपाद जो है मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, मैं ज्यादा सुंदर हूँ। गोपाल चक्रवर्ती को गर्व था अपनी विद्वत्ता का, अपने ज्ञान का। और हम देखते हैं ये जो प्राइड है ये बहुत डिमोनिक क्वालिटी है, इसलिए भगवान प्राइड को डिमोनिक क्वालिटी में मेंशन करते हैं 16वें अध्याय में। डिमोनिक क्वालिटी क्यों है? ये आपका ज्ञान ढक लेती है और आप सही तरीके से चीजों को नहीं देख सकते। आप ना अपने आप को देख सकते हो, ना दुनिया को देख सकते हो, ना भगवान को देख सकते हो, है ना? और आपके अंदर में कभी भी सही ज्ञान नहीं आ सकता अगर हम प्रभु हैं। तो गोपाल चक्रवर्ती आप देखिए, उनका क्या सौभाग्य था, हरिदास ठाकुर जैसे व्यक्तित्व का संग मिल रहा है। लेकिन उनका संग का फायदा उठाने की जगह वो क्या कर रहे हैं, अपनी विद्वत्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सोचिए, उनको वो दिखा रहे हैं देखो मुझे कितना ज्ञान है शास्त्रों का। जब तक हम विनम्र नहीं रहेंगे हमको कुछ ज्ञान मिल ही नहीं सकता है। वैसे यदु जो है वो हम देखते हैं कैसे मजाक उड़ाते हैं। शिशुपाल जो है वो तो कृष्ण को इतनी गालियां देते थे, ऐसा। तो तब भी भगवान देखे कितनी कृपालु है भगवान ने, क्योंकि जो उनकी भगवान की बुआ है शिशुपाल की माँ, उनको पता चल गया था, क्योंकि उनको ऐसा भविष्यवाणी था इसके दो एक्स्ट्रा हाथ और एक एक्स्ट्रा आंख जिसकी गोदी में रखने से ये चली जाएंगी वही इसका वध करेगा। तो उसकी बुआ ने क्या किया था, सबको बुलाया था और सबकी गोद में रखती थी देखने के लिए कि कौन मारेगा इसको। जब कृष्ण आए तो कृष्ण की गोद में रखा, जैसे ही रखा गायब। वो बोली बेटा ये तो कृष्ण बोले बुआ क्या हो गया, इस पे एकदम झटका लग गया। फिर वो बोली कृष्ण तुम मुझे बचाओ, तुम इसको मारोगे। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मैं एक वचन देता हूँ कि 100 लगातार, ये जो 100 बार गलती करेगा, गाली देगा, उसको मैं माफ करूंगा, लेकिन 100 क्रॉस कर देगा तो फिर माफ नहीं। तो उनकी माँ ने शिशुपाल को काउंटर दिया था कि बेटा 99 पर रोक दिया था। 99 से ऊपर मत जाएगा। तो बिल्कुल गिन के गाली करता था, फिर 99 पर रोक देता था, फिर ब्रेक लेता था, फिर जाता था पानी वानी पीता था, फिर आता। लेकिन जब राष्ट्रीय यज्ञ हुआ तो उस दिन क्या काउंटर लेके नहीं आया था। भगवान को इतना सम्मान मिल रहा था कि सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भगवान है। तो जब तक हमारा शुद्ध हृदय नहीं होता है तो ईर्ष्या होता है, जीवों के प्रति भी ईर्ष्या कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का प्रतीक है। क्योंकि जीव भी तो कृष्ण के अंश हैं, उनको भी तो शक्ति, उनको भी तो एम्पावरमेंट भगवान दे रहा है। अगर हम किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या महसूस कर रहे हैं तो वो इस बात का प्रूफ है कि हमारा हृदय में कृष्ण के प्रति भी ईर्ष्या है।
तो इस बार ये काउंटर लेके नहीं आया था, लेकिन भगवान काउंटर लेके आया। तो इसने गिनते 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 100 क्रॉस कर दिया, जैसे ही किया फिर भगवान ने बंद किया। वैसे हम देखते हैं रामानुजाचार्य की जो पत्नी है, महापूर्ण जैसे महान संत आए, और उसकी पत्नी उसी में लगी हुई है कि नीची जात के हम, ऊंची जात के हम, नीची जात के ये सब। हम देखते हैं कि अहंकार में हम ना किसी की सेवा कर पाते हैं, ना किसी के अच्छे गुण देख पाते हैं, ना दूसरों के सेक्रीफाइस को देख पाते हैं, ना कृतज्ञ रह पाते हैं। अहंकार में हमको यही लगता है पूरी दुनिया को मेरी सेवा करना चाहिए। अहंकार में सिर्फ अपेक्षा करते हैं, इनको ये करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए। तो हाई पद से अहंकार आता है। फिर ऑपुलेंस, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है, पद है, पदवी है, इससे अहंकार आता है। तो इंद्र को अहंकार आया पदवी के कारण, दक्ष को अहंकार आया पदवी के कारण, इंद्र को अहंकार आया पदवी के कारण। दक्ष भी ऐसे ही था इंद्र की तरह, बैठा है, इतने सारे देवी देवताओं को सम्मान कर रहे हैं, उससे गर्व हो गया। और सब सम्मान कर रहे हैं, सिर्फ शिव जी बैठे हुए थे, वो भी उसको झेला नहीं गया। वो भी आंख बंद करके बैठे थे, भैया ध्यान में होंगे, वो होंगे, नहीं देखा होगा आपको, तो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते थे। उसी में इतना आग बबूला हो गए कि बहुत हो गया, ये समझता है क्या है अपने आप को, धुनी लगा के बैठा हुआ है, और बस फिर बोलने लग गए। आप देखिए एकदम इतना क्रिटिसाइज करने लग गए। तो ये नेचर ऑफ फॉल्स प्राइड है, इट मेक्स वन फील दैट इट इज इन अदर्स। उनको लगता है कि ये दूसरों में है अहंकार, लेकिन असली में किसमें है, इसमें। वैसे ही रहोगुना जड़ भरत के प्रति, उनको भी अपने पद का अहंकार हो जाता है। द्रौपद को द्रोणाचार्य के प्रति, दोनों दोस्त थे, बाद में द्रुपद राजा बन जाते हैं, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, गरीब हो जाते हैं। तो द्रुपद ने ऐसा बोला था जब वो बच्चे थे, जब ये दोनों दोस्त थे, कि जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य आपको दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, संतुष्ट थे, उनको तो कुछ चाहिए नहीं था। अब द्रोणाचार्य क्योंकि इतना गरीब थे, तो उन्होंने याद किया कि कुछ मदद मिल जाएगा दोस्त से। तो गए, बस उन्होंने याद दिलाया कि याद है आपको, आपने ऐसा बोला था। और उनकी इच्छा नहीं थी कि आप पूरा आधा राज्य दे दो। उसी में द्रुपद भड़क गए, अरे वो तो बचपन की बात थी, समझते क्या तुम फकीर हो, मैं राजा हूं, ये वो बोल दिए। बस वहीं से दोनों का लड़ाई चालू हो गई। वैसे टू मच लर्निंग, रोम सूत बहुत विद्वान थे, तो बलराम जी आए हैं, सोच सकते हो बलराम जी आए हैं, उनको भी सम्मान नहीं दिया। कितना ये सारी चीजें अहंकार लेके आती हैं। तो भक्त को सतर्क रहना चाहिए, इनसे आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, क्षण भंगुर है। आप देखिए जड़ भरत जो पूरे पृथ्वी के राजा हैं, अगले जन्म में क्या बन रहे हैं, हिरण बन रहे हैं। इस संसार का पद, इस संसार की पदवी, ऑपुलेंस, ये सब क्षण भंगुर है। आज आप इतने महान हो, कल गिर जाओगे। तो रोम हर्षसूत जो है, उनको भी सम्मान नहीं दे पाए। ऐसे हम देखते हैं केशव कश्मीरी जो है, वो चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ पाते हैं, रूप नारायण रूप गोस्वामी को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनको अपनी विद्वत्ता का अहंकार हो जाता है। केशव कश्मीरी अपने साथ बैलगाड़ी लेके चलते थे, उस बैलगाड़ी में पूरे किताबें भरी रहती, उनको बहुत अहंकार था, इतनी सारी किताबें मैंने पढ़ दी। और एक पर्चा लेके चलते थे, जो भी हारता था उसको साइन कराते थे कि मैं इस दिनांक को केशव कश्मीरी से हारा हूँ। और इस तरीके से वो अपना रिज्यूमे बना रहे थे। फिर ड्यूटी, तो जो नल कुबेर और मन गरीब है, उनको अपनी सुंदरता का वो था कि मैं बहुत सुंदर हूँ। ये ब्यूटी का भी अभिमान होता है। जो नागमुनि गंधर्व के रूप में थे पिछले जन्म में, उनको भी ब्यूटी का अभिमान था। तो इसलिए यह सब बताया गया है शास्त्रों में कि ये जो चीजें हैं, ये हमारे को अहंकार लेके आती हैं। तो इसलिए कुंती महारानी तो बता रही है कि ये लोग भगवान के भक्ति नहीं हो सकते, बोल रही है। भगवान के भक्त कौन हो सकते हैं, अकिंचन गोचरम, जो मानते हैं कि मेरे पास ये कुछ नहीं है, वो ही भगवान का सही तरीके से नाम जप कर सकते हैं। अब जो जिसको अहंकार है, उसको बोलिए भगवान का नाम जप कीजिए, वो ऐसे करता है जैसे कि एहसान कर रहा है, ठीक है हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। मंदिर में आई, हाँ आते हैं मंदिर में, एहसान करते हैं बोलो भगवान। लेकिन अकिंचन गोचरम, जो इनसे आइडेंटिफाई नहीं करते, वही अपने आप को प्रमाणिक दास के रूप में देख सकते हैं, दास के रूप में समझ सकते हैं, और भगवान को जो है उस तरीके से हेल्पलेसली क्राई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। हमारे जीवन में अभी जितना हम ये भौतिक चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं,
जितना अपने भौतिक शेल्टर लेते हैं उतना हम कृष्ण का शेल्टर नहीं ले पाए। ये एक तथ्य है, एक सच्चाई है। इसलिए आप देखेंगे शास्त्रों में महान महान लोग भी अपने आप को कितना विनम्र मानते थे, कभी भी भौतिक चीज से आइडेंटिफाई नहीं करते थे। हमारे जो षड गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, कितने बड़े बड़े पद पे थे, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, और क्या नहीं था उनके पास। सैलरी में करेंसी नहीं, नोट्स नहीं आते थे, गोल्ड के बिस्किट्स आते थे। इतना धनाढ्य होने के बाद, इतनी क्षमता होने के बाद, उनको सारी भाषाओं का ज्ञान था, बहुत विद्वत था, लेकिन हमेशा विनम्र रहते थे कि हम तो अधम हैं। और क्या, कितने अधम है, हम तो जगाई मदाई से ज्यादा अधम है। हमने तो मलेच्छाओं के अंदर में सेवा किया है, हम तो बहुत पतित हैं। जब शिला सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी में जाते हैं, तो सामने के रास्ते से वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए नहीं जाते हैं। वो पीछे के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए सिद्ध गोकुल में। तो उनके पैरों में छाले हो जाते हैं, क्योंकि धूप थी और समुद्र का रास्ता जो है उसमें रेत होती है। तो महाप्रभु पूछते हैं, आप पीछे के रास्ते से क्यों आए? अब देखिए, सनातन गोस्वामी इतने अ, महान भक्त भगवान के, जिनके सपने में भगवान आए और ब्राह्मण के रूप में है, और उनको सपने में भागवतम दिया। और बाद में वही ब्राह्मण, जैसे ही उनका सपना टूटा, साक्षात रूप में आए और उनको भागवतम दिया। वो सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं कि अरे अगर मैं सामने से आता, तो जो हवा चल रही है वो मेरे शरीर को छू के, जो जगन्नाथ जी के पुजारी हैं उनके शरीर को छूती, और मैं तो इतना अधम और पतित हूँ, उससे जो जगन्नाथपुरी के पुजारी हैं वो कंटेमिनेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पीछे के रास्ते से आया। तो ये सुन के महाप्रभु का हृदय पिघल गया कि अरे आप कितने विनम्र हो, ऐसा। तो हम देखते हैं इतने महान व्यक्तित्व है, ये कभी भी आइडेंटिफाई नहीं किए, क्योंकि ये सब तो भगवान की विभूतियां हैं, हमारी विभूतियां नहीं है। भगवान आज चाहेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से गा सकते हो, और भगवान चाहेंगे तो कल खर खर निकलेगा लेकिन आवाज नहीं निकलेगा। फिर गले में चाहे हार्पिक डालो, कुछ भी डालो कितना भी क्लीन करो, उसको निकलेगा नहीं आवाज। संसार में आप देखते हो, कुछ लोगों के मुंह है, जीभ है, लेकिन आवाज नहीं निकलता है, गूंगे हैं। देखते हो, कुछ लोगों के कान है लेकिन सुनाई नहीं देता, कुछ लोगों की आंख है लेकिन अंधे हैं। ऐसा। तो ये भगवान की विभूतियां हैं, भगवान चाहेंगे तो बहुत शक्ति दे सकते हैं, भगवान चाहेंगे तो शक्तियां ले सकते हैं। तो भक्त अगर इनसे आइडेंटिफाई करता है तो अहंकार आ जाता है, और अहंकार जैसे ही आता है तो फिर अज्ञान आ जाता है। ज्ञान के स्तर पे आप नहीं रह सकते। और सबसे अ, जो है डेंजरस चीज क्या है भक्त के लिए, ऐसी स्थिति में वो वैष्णव अपराध कर सकता है, जीव हिंसा कर सकता है, और ये भगवान को बहुत आकर्षणीय है। और ऐसा संसार में बार बार होता है, बड़े बड़े लोग आते हैं जिनको शक्ति मिलती है, शक्ति का अभिमान होता है, फिर वो जीव हिंसा करते हैं, भक्त अपराध करते हैं, और फिर भगवान उनका विनाश करते हैं। इन सब में भी जो भक्त अपराध है वो सबसे प्रिय है। जब सारे देवी देवता जब हिरण्यकशिपु के आतंक से परेशान थे, तो जब वो जाते हैं त्राईमाम त्राईमाम क्षीर सागर पे ब्रह्मा जी को लेके, भगवान से विनती करते हैं भगवान क्या करें। तो भगवान बोलते हैं चिंता मत करो, जब ये एक भक्त का अपराध करेगा, वहां से इसका विनाश चालू हो जाए। तो भगवान इंतजार किए, फिर जब उनके ही परिवार में उनका ही पुत्र भक्त के रूप में आ गया, भगवान भी देखो कैसे लीला करते हैं, उनका ही पुत्र भक्त निकल गया। और ऐसा महान भक्त के उसी के प्रति उन्होंने अपराध किया, और बस वहीं से उनका पूरा विनाश हो गया। ऐसा। तो हमारे जीवन में भी हमको ये माइंड का, देखिए 24/7 कमेंट्री चलता रहेगा। माइंड की दो ही कमेंट्री रहेंगे आपके जीवन में, एक है तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत महान हो। अभी पता नहीं कब रूपा जी तुम्हारे सपने में आ जाए, और रूपा जी रिवील करेंगे कि आप कैसे, आप जो है इसको हमको आगे बढ़ाना है। और देखो तुम्हारे जो विचार है, अगर उनके अनुसार दुनिया चले, तो कितना दुनिया में वो हो जाएगा, शांति हो जाएगी। आपके आइडियाज अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो भारत कहाँ पहुंच जाएगा। हर किसी को ये लगता है, मोदी अगर आपके आइडियाज के अनुसार कार्य करे तो पता नहीं दुनिया का क्या हो जाएगा। तो माया देवी ये देती रहेंगी, कमेंट्री उनका 24/7 चलता रहेगा। आप महान,
आपको आगे बढ़ना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए आपका। होगा नहीं लेकिन ऐसा मन में माया विचार देती रहेगी। दूसरा है भोग का, इसको भोग किया है अब इसको भोग करना है, फिर वहां भोग करना है, फिर ऐसे भोग करना है, फिर ऐसे भोग करना है। पिछली बार भोग किया याद है? तो ये भोग और अहंकार, ये दोनों हमारे बंधन का कारण है। और माया 24/7, हमारा जो माइंड माया का प्रतिनिधि है, तो 24/7 हमारे पास में रहता है, उसका एक कांस्टेंट कमेंट्री चलेगा। आप में से कितनों को लगता है कि ऐसा चलता है? हमेशा ऐसा चलता है ऐसा। एक वक्त मेरे पास आए थे, वो तो बोल भी दिए, प्रभु जी प्रभुपा जी मेरे सपने में आए। मैं बोला अच्छा, क्या बोले प्रभुपा जी सपने में आके? बोले कि अब ये इस्कॉन जो है तुम्हारे हाथों में है। बोला ठीक है, प्रभुपा जी आए हैं तो देखो आगे तुम प्रीचिंग करो, सक्सेस मिलेगा, आगे प्रचार में बढ़ पाओगे। तो उनको प्रचार में उतना सक्सेस मिलता नहीं है। तो मैं बोला कि शायद प्रभुपा जी आए नहीं थे आपके सपने में। इस्कॉन आपके हाथों में नहीं है, आप इस्कॉन के हाथों में हो। तो अपने आप थोड़ा भक्ति कर लो, थोड़ा सेवा कर लो, खुश रहो उसमें। तो ऐसा बहुत रहता है, समहाउ ये है ही माइंड का। लेकिन हमें जानना है कि मैं तो विनम्र हूँ, भगवान की कृपा से चल रहा हूँ। भगवान गीता में क्या बोलते हैं कि आपका जो खाना पचता है उसकी जो अग्नि है वो भी मैं हूँ। आप बड़ी बड़ी चीजें छोड़ दो, आप एक चपाती नहीं पचा पाओगे भगवान नहीं चाहेंगे। फिर आप टॉयलेट में बैठे रहोगे, निकलेगा ही नहीं। फिर जो खाना है खाओ, जो आसन पे बैठना है बैठो, जो गर्म पानी पीना है पियो, निकलेगा नहीं। जब भगवान बोलेंगे तब निकलेगा। लेकिन अहंकार का देखिए कैसा रूप है, हर छोटी चीज पे अहंकार हो जाता है। और कलयुग में तो ना हमारे शरीर में शक्ति है फिर भी अहंकार हो जाता है। कलयुग में ना हमारा उतना ज्ञान है, किसी को भी कोई भी चीज याद नहीं रहती कलयुग में। पासवर्ड भी भूल जाते हैं, पासवर्ड को भी अलग जगह लिखते हैं रखते हैं, और कई बार वो भी भूल जाते हैं कि कहाँ रखा है। ऐसा जीव भी एक दो श्लोक याद कर लेता है, उसमें प्राइड आ जाता है। इतना बुरा हाल है कलयुग का। ना भक्ति कर पाते हैं, ना सेवा कर पाते हैं, ना प्रचार कर पाते हैं। लेकिन ये अहंकार जो है छोड़ता नहीं है। लेकिन हमें जानना है कि ये हमको भगवान से दूर लेके जाएगा। जितनी भी विभूतियां हैं वो भगवान की हैं, इसलिए तो विभूति योग भगवान ने गीता में बताया है कि जानो सारी विभूतियां मुझसे आ रही हैं। कहीं सुंदरता है, कहीं कोई विभूति है, शक्ति है, सब भगवान से आ रही है। और हमें देखना है वो भगवान की शक्ति के रूप में, भगवान की सेवा के रूप में, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं। भगवान से आती है और भगवान उसको कभी भी वापस ले सकते हैं। ऐसा। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली बार। अभी यहीं पर विराम देते हैं।